Hello students, so our next topic is curl of a vector function. अब हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को वेक्टरली अप्लाई करेंगे ऑन द वेक्टर फंक्शन f. Del cross f is known as the curl of a vector function. Being the cross product, it somehow represents the rotation of the vector. A vector will be said irrotational if its curl is 0. Rate of change in terms of cross product del cross f must be 0. Now what is this curl of a vector function? इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं del cross f. Del initially was the operator I cap curly by curly x plus j cap curly by curly y plus k cap curly by curly z applied vectorly on the function f with components f1, f2, f3. Say f1 I cap, f2 j cap, f3 k cap. वेक्टर प्रोडक्ट को आप प्लस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज आई क्रॉस करली एफ वाई करली एक्स, इसको आप एफ भी रख सकते हैं एज इट इज वेक्टर एफ. सो आई क्रॉस करली एफ वाई करली एक्स प्लस जे क्रॉस करली एफ वाई करली वाई प्लस के कैप करली एफ वाई करली जेड. So let us evaluate this. I cross curly by curly x of f. F is f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. ठीक है, इसी को पहले हमने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है. चाहो तो आप यूँ भी लिख सकते थे कि आई कैप क्रॉस करली बाई करली एक्स ऑफ f1 आई कैप, f2 जे कैप एंड f3 के कैप. हमने इसको दो स्टेप्स में किया है, पहले इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया, अब इसको एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, तो पहले सिर्फ इसकी पहली टर्म को हम इवेलुएट कर लेते हैं. दैट विल बी आई क्रॉस आई 0 करली f1 बाई करली एक्स, I cross j as k cap curly by curly x of f2. इसी तरह से I cross k, since k cross I as z, so I cross k as minus of z into curly f3 by curly x. Similarly इसकी सेकेंड टर्म को आप एक्सपेंड करें, j cross curly by curly y of f. f is f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap. So this will be equal to j cross I cross j as k, so minus of k cap curly f1 by curly y, j cross j as 0 and j cross k as I cap curly f3 by curly z. Similarly k cross curly by curly z of f1 I cap, f2 j cap plus f3 k cap will be equal to k cross I as j, so j cap into curly f1 by curly z, k cross j, since j cross k as I, so k cross j as minus of I cap curly f2 by curly z and k cross k as 0. ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ हमारे पास क्या था, दीज थ्री टर्म्स. इन तीनों टर्म्स को हमने इवेलुएट कर लिया, इनको सम अप कर देते हैं. सो डेल क्रॉस एफ विल बी
ith component is curly f3 by curly z minus curly f2 by curly z. Jth component is curly f3 by curly y. This one was curly y plus j कैप के कंपोनेंट्स. j कैप के कंपोनेंट्स क्या हैं? curly f3 by curly x और देखिए curly f1 by curly z. So this will be curly f1 by curly z minus curly f3 by curly x. So is for k cap curly f2 by curly x minus curly f1 by curly y. So curl of f will be this. इसको याद रखने के लिए आपको इतनी लंबी एक्सपेंशन नहीं करनी है. इसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट टूल है, दैट इज़ i, j एंड k. इसको आप एग्जैक्ट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि हम एक ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ वेक्टर फंक्शन, बट इट विल बी आइडेंटिकल टू दैट. क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते थे? i, j एंड k. del is curly by curly x I cap, curly by curly y j cap and curly by curly z k cap. And this is f1, f2, f3. Okay. So I cap into curly by curly y of f3 minus curly by curly z of f2. ठीक है. j cap is curly by curly z of f1 minus curly by curly x of f3. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. किसी भी वेक्टर फंक्शन का अगर हमें कर्ल निकालना है तो डेल क्रॉस एफ को आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट करेंगे, आई जे के components of the operator and components of the given vector function. Now a vector function is said to be irrotational if its curl is 0. Now some of the properties of the curl are given. First is like that of divergence and gradient, curl can be distributed over plus and minus, that is del cross sum of two vector functions f plus c can be written as del cross f plus del cross c. इसमें आप चाहो तो इसको इवेलुएट कर सकते हो. ये हमारे पास क्या आएगा एज डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. इसी तरह से curly by curly x, curly by curly y and curly by curly z of components of f plus g. components of f plus g क्या होंगे? f1 plus g1, f2 plus g2 and f3 plus g3. ठीक है. तो आपके पास i cap इंटू curly by curly y of f3 plus g3 minus curly by curly z of f2 minus z2. इसी तरह से jth component is curly by curly z of f1 plus g1 minus curly by curly x of f3 minus z3, f3 plus z3, plus kth component is curly by curly x of f2 plus z2 minus curly by curly y of f1 plus z1. क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, करली बाई करली वाई ऑफ f3 प्लस g3 को आप क्या लिखेंगे? करली बाई करली वाई ऑफ f3 प्लस करली बाई करली वाई ऑफ g3. ठीक है. इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में इस पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को प्लस और माइनस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट में फिर से आप f के कंपोनेंट्स को अलग लिख लेंगे, दैट इज़ करली बाई करली वाई ऑफ f3 माइनस करली बाई करली z ऑफ f2. ठीक है. इसी तरह से jth और kth कंपोनेंट, ये अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे दैट विल बी आई कैप इंटू करली बाई करली वाई ऑफ f3, करली बाई करली वाई ऑफ f3 माइनस करली बाई करली z ऑफ f2. ठीक है. ये आपके पास आ जाएगा डेल क्रॉस f, दैट इज कर्ल ऑफ f प्लस कर्ल ऑफ g. कुछ नहीं करना,
इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले पार्ट में करली बाई करली वाई ऑफ F3 माइनस करली बाई करली Z ऑफ F2। जब जी का पार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली बाई करली वाई ऑफ Z3 माइनस करली बाई करली Z ऑफ Z2। इसी तरह से जेथ कंपोनेंट में पहले में करली बाई करली Z ऑफ F1 माइनस करली बाई करली X ऑफ F3। इसी तरह से केथ कंपोनेंट में पहले F के पार्ट फिर G के पार्ट, करली बाई करली X ऑफ F2 माइनस करली बाई करली Y ऑफ F1, and this is curl of F. So similarly this will be curl of Z. कुछ और प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। इफ डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0, देन कह रहा है F इज अ कांस्टेंट वेक्टर। F is a constant vector. अगर डेल क्रॉस F गिवन है to be 0, that means IJK curl by curl X curl by curl Y curl by curl Z of F1 F2 F3 is equal to 0. इसको आप एक्सपेंड कर लिए, that is I cap into curly by curly Y of F3 minus करली बाई करली Z ऑफ F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, सॉरी क्लेम कर रहे हैं। आई कैप इंटू करली बाई करली वाई ऑफ F3 माइनस करली बाई करली Z ऑफ F2। इसी तरह से जेथ कंपोनेंट करली बाई करली Z ऑफ F1 माइनस करली बाई करली X ऑफ F3। एंड सिंस F इज गिवन टू बी अ कांस्टेंट वेक्टर, it is independent of x, y and z, so are its components f1, f2 and f3. So all these partial derivatives of f1, f2, f3 with respect to x, y and z will be 0. So del cross f for a constant function will always be 0. ठीक है, सिर्फ वन डायरेक्शनल ये आपके पास होल्ड करता है कि इफ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन देन डेल क्रॉस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन के लिए अगर कर्व 0 है तो वो नेसेसरली एक कांस्टेंट फंक्शन है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल डेल क्रॉस फाई एफ, दैट इज डेल फाई क्रॉस एफ प्लस उसी तरह से जिस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते थे, ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी ओवरऑल हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट इज डेल फाई क्रॉस एफ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फाई को एज इट इज रखेंगे, डेल क्रॉस एफ। अब डेल क्रॉस फाई एफ इज द कर्ल ऑफ फाई एफ एंड कर्ल ऑफ फाई एफ, फाई इज सम स्केलर फंक्शन, तो फाई एफ आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज फाई एफ वन आई कैप प्लस फाई एफ टू जे कैप प्लस फाई एफ थ्री के कैप। सिंस एफ इज सम एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप एंड एफ थ्री के कैप, तो हमने फाई से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। कर्ल ऑफ फाई एफ क्या हो जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट आई जे के components of the operator, that is curl by curl x, curl by curl y and curl by curl z. Components of phi f is phi f1, phi f2 and phi f3. इसके बाद आपका सारा काम किसके ऊपर रह जाता है, सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के ऊपर। लेट अस एक्सपेंड दिस, आई कैप इनटू करली बाई करली वाई ऑफ फाई एफ थ्री माइनस करली बाई करली z ऑफ फाई एफ टू प्लस जे कैप इंटू करली बाई करली z ऑफ फाई एफ वन माइनस करली बाई करली x ऑफ फाई एफ थ्री प्लस के कैप इंटू करली बाई करली x ऑफ फाई एफ टू माइनस करली बाई करली y ऑफ फाई एफ वन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, आई कैप इंटू करली फाई बाई करली वाई एफ थ्री एज इट इज प्लस इस बार फाई एज इट इज करली एफ थ्री बाई करली वाई, माइनस में इसी तरह से फाई एज इट इज
करली F2 बाई करली Z प्लस माइनस साइन के साथ, इस बार F2 एज इट इज करली फाई बाई करली Z on the same lines plus j cap into phi as it is curly f1 by curly z plus f1 as it is curly phi by curly z minus curly by curly x of phi f3 as it is minus phi as it is curly f3 by curly x plus k cap into phi as it is curly f2 by curly x प्लस इस बार F2 एज इट इज करली फाई बाई करली एक्स माइनस फाई एज इट इज करली F1 बाई करली वाई माइनस F1 एज इट इज करली फाई बाई करली वाई। ठीक है, अब देखिए इसको हम सम अप कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर कि डेल क्रॉस फाई एफ हमें क्या चाहिए था, डेल फाई क्रॉस एफ प्लस फाई इंटू डेल क्रॉस एफ। तो पहले तो हम फाई की सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, फाई इंटू, देखिए फाई के अंदर यहाँ अगर टर्म्स की बात करें तो करली F3 बाई करली वाई माइनस करली F2 बाई करली Z इंटू आई कैप प्लस इसी तरह से जे कैप में फाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जे कैप इंटू करली F1 बाई करली Z माइनस करली F3 बाई करली X। इसी में से हम सिर्फ फाई की टर्म्स ले रहे हैं, करली F3 बाई करली वाई माइनस करली F2 बाई करली Z इंटू आई कैप। इसी तरह से सेकेंड पार्ट से फाई की टर्म्स करली F1 बाई करली Z एंड करली F3 बाई करली X प्लस के कैप इंटू के कैप फाई की टर्म्स करली F2 बाई करली X माइनस करली F1 बाई करली Y and that are the components of curl of vector function f. So this can be written as phi into del cross f. अब बाकी की जो टर्म्स हमारे पास बची उनको आप इकट्ठा लिख लीजिए, दैट इज F3 इंटू करली फाई बाई करली वाई माइनस F2 करली फाई बाई करली Z आई कैप। इसी तरह से इसका jth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट, इसको जब आप देखेंगे ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन है, दैट इज एफ क्रॉस डेल फाई क्रॉस एफ, डेल फाई क्रॉस एफ। इस तरह से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे आई जे के करली फाई बाई करली एक्स आई कैप करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप एंड कंपोनेंट्स ऑफ एफ आर F1 F2 एंड F3। तो हमारे पास ith कंपोनेंट क्या आएगा, F3 इंटू करली फाई बाई करली वाई। देखिए ith कंपोनेंट क्या आएगा, F3 इंटू करली फाई बाई करली वाई माइनस F1 इंटू F2 इंटू करली फाई बाई करली Z, F2 इंटू करली फाई बाई करली Z। इसी तरह से jth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट, इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई क्रॉस एफ। तो अगर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाए तो आपको डेल क्रॉस फाई एफ निकालना है और उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना है कि फाई इंटू डेल क्रॉस एफ, फाई की टर्म्स एक तरफ रख लेंगे, बाकी की सारी टर्म्स को एज इट इज़ एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई एंड एफ एक्सप्रेस कर देंगे। Two more important properties. First is del cross f cross z. First is curl of cross product of two functions f cross z. Del cross f cross z, this will be, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं जिस तरह से हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था, आल्दो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, दो और टर्म्स यहाँ एक्सटेंडेड हैं आपके पास, बट मिडल वेक्टर इनटू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, दैट इज डेल डॉट जी। डॉट अगर आप बात कर रहे हैं दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जी, इसको आप हम एक बार वर्ड्स में भी लिखेंगे ताकि याद रह जाए, माइनस
other vector in the parenthesis is z into del dot f. दो एडिशनल टर्म्स हमारे पास आएंगी यहाँ, दैट इज z डॉट डेल एफ z डॉट डेल अप्लाइड ऑन f, क्योंकि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको आप चाहो तो इस तरह से ब्रेसेस में रख सकते हो, z डॉट डेल f माइनस f डॉट डेल z। ये आपको याद भी रखना है और वेरीफाई करना भी आना चाहिए। कर्ल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस, मिडल वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, दैट इज डेल डॉट z माइनस z इंटू डेल डॉट f। उसके बाद दो टर्म्स और हैं आपके पास, z डॉट डेल अप्लाइड ऑन f माइनस f डॉट डेल अप्लाइड ऑन z। ठीक है, वैसे बुक में इसने इसको डायरेक्ट लिख रखा है, पर डेल का z के ऊपर अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। f डॉट डेल, पहले इस ऑपरेटर को हम डील करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, z के ऊपर। इसी को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो हमारे पास कर्ल ऑफ f क्रॉस g कैन बी रिटन एज f इंटू डाइवर्जेंस ऑफ g माइनस g इंटू डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस z dot del, that is the operator applied on f, minus f dot del applied on z. Now the verification part, पहले f cross g हम निकालेंगे, f cross g इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल इज आई कैप इंटू करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप इंटू करली बाई करली वाई प्लस के कैप इंटू करली बाई करली जेड। डेल की ओरिजिनल फॉर्म हमने लिखी क्रॉस एफ क्रॉस जी, दैट विल बी आई कैप क्रॉस करली बाई करली एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी। ठीक है, इसी तरह से बाकी की टर्म्स, जे कैप क्रॉस करली बाई करली वाई ऑफ एफ क्रॉस जी प्लस के कैप क्रॉस करली बाई करली जेड ऑफ एफ क्रॉस जी। हम एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी को बाई सिमेट्री लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, let us take this term I cap cross curly by curly x of f cross g। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, I क्रॉस करली बाई करली x ऑफ f क्रॉस g प्लस इस बार f एज इट इज क्रॉस करली बाई करली x ऑफ g। इस टर्म से हमारे पास दो पार्ट्स आ गए, इसी तरह से इस टर्म से भी हमारे पास दो पार्ट आएंगे और इस टर्म से भी हमारे पास दो पार्ट आएंगे। इसके दोनों पार्ट को हम डील करते हैं, आई क्रॉस करली एफ बाई करली एक्स क्रॉस जी प्लस आई क्रॉस एफ क्रॉस करली जी बाई करली एक्स। मिडल वेक्टर दैट इज करली एफ बाई करली एक्स इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, that is I dot z minus other vector in the parenthesis, that is z into I dot curly f by curly x। इसी तरह से middle vector f into dot product of other two curly z by curly x minus other vector in the parenthesis is f into I डॉट करली जी बाई करली एक्स। इसी तरह से सेकंड और थर्ड टर्म्स आप निकालेंगे। ठीक है, बाई सिमेट्री में लिख देता हूँ, सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी, करली एफ बाई करली वाई इनटू, क्योंकि जे वेक्टर हमारे पास है, दैट इज जे डॉट जी माइनस जी इंटू जे डॉट करली एफ बाई करली वाई प्लस जी इंटू सॉरी एफ एफ इंटू जे कैप करली जी बाई करली वाई माइनस एफ इंटू
जे डॉट करली जी बाई करली वाई. Similarly for z, curly f by curly z into k dot z minus z into k dot curly f by curly z plus f into k dot curly z by curly z minus f into k into curly z by curly. इन सब को सम अप करके हमें किसकी टर्म्स में लेके आना है, f इंटू डेल डॉट z इंटू डेल डॉट f, z डॉट डेल इंटू f. नाउ करली f बाई करली x, एक वेक्टर की तरह जब हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी करली f1 बाई करली x आई कैप प्लस करली f2 बाई करली y जे कैप प्लस करली f3 बाई करली z के कैप. ठीक है. तो इन टर्म्स की अगर बात करें, आई डॉट करली f बाई करली x क्या आएगा, करली f1 बाई करली, सिर्फ टर्म क्या आएगी यहाँ पर, करली f1 बाई करली x. जब इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और z के विद रिस्पेक्ट इसको स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, करली f2 बाई करली y. ठीक है. इसी तरह से k डॉट करली f बाई करली z, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, करली f3 बाई करली z. कुछ भी नहीं, बिल्कुल वेक्टर ऑपरेशंस आपके पास हैं. ये जो करली f बाई करली x था, f एज ए वेक्टर क्या है, f1 आई कैप, f2 जे कैप एंड f3 के कैप. इसको हमने x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसके कंपोनेंट्स को भी हम क्या करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे. तो करली f बाई करली x क्या आया, करली f1 बाई करली x आई कैप इंटू जे कैप एंड के कैप. क्योंकि हमें सिर्फ i के साथ डॉट प्रोडक्ट करना था, तो i डॉट आई एज 1, आई डॉट जे 0 एंड आई डॉट के 0, ये दोनों पार्ट आपके 0, सिर्फ क्या बचेगा, करली f1 बाई करली x. इसी तरह से इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो करली f1 बाई करली y, करली f2 बाई करली y एंड करली f3 बाई करली z. जब j से स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ j का कंपोनेंट बचेगा, दैट इज करली f2 बाई करली y, और इसी तरह से करली f3 बाई करली z. ठीक है. अगर z हम कॉमन ले लें थ्रू आउट, z एज अ वेक्टर, तो अंदर क्या बचा, करली f1 बाई करली x प्लस करली f2 बाई करली y एंड करली f3 बाई करली z. यानी ये पार्ट हमारे पास आ गया z इंटू डेल डॉट f. क्लियर है. इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है, f इंटू डेल डॉट z, f इंटू डेल डॉट z. ठीक है. डेल डॉट z इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ z. उसी तरह से करली z बाई करली x निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, करली z1 बाई करली x. इसी तरह से करली z बाई करली y को हम जब j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम काम, ये z को भी हम क्या करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, करली z1 बाई करली x आई कैप प्लस करली z2 बाई करली x जे कैप प्लस करली z3 बाई करली x के कैप. और जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ कंपोनेंट क्या बचेगा, करली z1 बाई करली x, करली z2 बाई करली y एंड करली z3 बाई करली z. ठीक है. तो आई कैप इंटू करली z बाई करली x, करली z बाई करली y एंड करली z बाई करली z की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ हमने उल्टा लिख दिया. दिस इज f डॉट आई, f डॉट z एंड f डॉट k इंटू दिस. ये क्या था, मिडल वेक्टर into dot product of other vector in the parenthesis, that is curly z by curly x into dot product of other two, that is I dot l. ठीक है. तो ये दोनों पहले पार्ट हमारे पास आ गए एक्सपेंशन के. बाकी के दो पार्ट्स को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z डॉट डेल. z डॉट डेल विल बी, z डॉट डेल को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो z1 आई कैप, z2 जे कैप एंड z3 के कैप इंटू डेल. डेल इज करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप. तो जी डॉट डेल क्या हो जाएगा, z1 करली बाई करली एक्स प्लस z2 करली बाई करली वाई प्लस z3 इंटू करली बाई करली जेड. ठीक है. जो बाकी की दो टर्म्स हमारे पास बची, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे आप, दैट इज करली f1 बाई करली x इंटू आई डॉट z. z1 आई कैप, z2 जे कैप एंड z3 के कैप. तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, g1
दैट इज g1 करली f by करली x, g1 करली f by करली x। इसी तरह से नेक्स्ट से हमारे पास क्या बचेगा, g2 करली f by करली y, g2 करली f by करली y, g3 करली by करली z। So this is g dot del applied on f. Similarly, this will be f dot del applied on z. Next sum is r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. Show that curl of r is equal to 0. कर्ल ऑफ आर हमने निकाला, दैट इज डेल क्रॉस आर वेल पे इक्वल टू आई जे के कर्ल बाई कर्ल एक्स कर्ल बाई कर्ल वाई कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ एक्स आई कैप वाई एंड जेड के कैप। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया आई कैप इंटू करली वाई ऑफ जेड 0, करली जेड ऑफ वाई 0 माइनस जे कैप इंटू कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ जेड 0, कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली के कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ वाई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। कर्ल ऑफ आर आपके पास क्या आ गया, 0। थर्ड सम आपको गिवन है एफ इज अ वेक्टर फंक्शन, देन प्रूव दैट एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। एफ इज गिवन टू बी एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के कैप। We have to prove f dot curl of f is equal to 0. कर्ल ऑफ f निकाला हमने, उसी तरह से डिटर्मिनेंट की टर्म्स में आई जे के कर्ल बाई कर्ल एक्स कर्ल बाई कर्ल वाई एंड कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 एंड माइनस एक्स माइनस वाई। So curl of f will be I cap into curl by curl y of this minus 1, curl by curl z of this 0 plus j cap into curl by curl z of this 0 minus curl by curl x of this, तो ये प्लस आपके पास 1 plus j cap into curl by curl x of this 0, curl by curl y of this is 1 minus I cap plus j cap प्लस के कैप। ठीक है, एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1, माइनस 1 से हमने इसको कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट किया प्लस 1 एंड सॉरी कुछ मिस्टेक है प्लस माइनस। ओके, ये आपके पास क्या आया, केथ कंपोनेंट एज कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ 1 0 माइनस साइन के साथ, ये आपके पास माइनस 1 आएगा माइनस के है। ठीक है, सो माइनस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये आपके सारे कैंसिल आउट होकर वो क्या हो जाएंगे, 0। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। एक टर्म हमने पढ़ी थी इररोटेशनल, कि किसी भी वेक्टर फंक्शन को हम कहेंगे इररोटेशनल इफ इट्स कर्ल इज 0। तो हमें ये प्रूव करना है कि गिवन वेक्टर फंक्शन एफ इज इररोटेशनल। साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। डेल क्रॉस एफ that is I, j and k, curl by curl x, curl by curl y, curl by curl z of sin y plus z, x cos y minus z and x minus y. Ith component curly by curly y of this minus 1, curly by curly z of this माइनस साइन के साथ माइनस जेड का डिफ्रेंशिएशन दैट इज प्लस 1।
plus j cap into curl by curl z of this 1 minus curl by curl x of this 1. इसके ith और jth component 0 plus k cap into curl by curl x of this cos y minus curl by curl y of sin y, that is again cos y. ये आपके पास 0, that means the given vector is irrotational. If A is a constant vector, then find curl of R cross A. A is given to be a constant vector. That means A1 I cap, A2 j cap and A3 k cap will have the components A1, A2, A3 that are independent of x, y and z. So R cross A as a vector will be ijk x, y, z and A as A1, A2, A3. So its ith component will be A3y minus A2z plus j cap into A1z minus A3x plus k cap into A2x minus A1y. Now curl of this, curl will be del cross R cross A. इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं जो डेल क्रॉस एफ क्रॉस भी हमने किया था, या फिर आर क्रॉस ए निकाल सकते हैं और डेल क्रॉस दैट इज आई जे के कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ दीज कंपोनेंट्स ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड, ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स एंड ए टू एक्स माइनस ए वन वाई. So ith component will be curly by curly y of this. देखिए जब आप प्रोडक्ट की फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, a2 का डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि a2 आपके पास क्या था, एक कांस्टेंट 0, करली बाई करली y ऑफ x एज 0. ठीक है, ये पार्ट आपका 0, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ a1 माइनस करली बाई करली z ऑफ दिस, दैट विल बी अगेन a1 प्लस इसी तरह से जी कैप इंटू करली बाई करली जेड ऑफ दिस माइनस ए टू, करली बाई करली एक्स ऑफ दिस माइनस ए टू प्लस के कैप इंटू करली बाई करली एक्स ऑफ दिस माइनस ए थ्री एंड माइनस ए. दैट विल बी माइनस 2 एज कॉमन, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप एंड ए थ्री के कैप, or simply minus 2 times of vector A. Next sum is, show that del dot f cross r is equal to 0 if del cross f is equal to 0. Del dot f cross r, del dot f cross r, divergence of product of two vector functions will be equal to v dot, v means r, r dot del cross f plus f dot del cross r. ये हमारे पास आइडेंटिटी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विल बी v dot del cross f minus f dot del cross r. We are provided that del cross f is equal to 0. हमें ये गिवन है कि del cross f क्या है, 0. That means this term will be 0 minus, since del cross r will be I j k, अभी हमने प्रूव किया था, कर्ल बाई कर्ल x, कर्ल बाई कर्ल y एंड कर्ल बाई कर्ल z of x, y and z. कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ वाई, कर्ल बाई कर्ल वाई ऑफ एक्स, इस तरह से जितने भी नॉन आइडेंटिकल पेयर्स हैं उन सब का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. सो डेल डॉट एफ क्रॉस आर इज 0 इफ
del cross f is equal to 0. Next is evaluate curl of r sin r. Curl of r sin r, where r is a vector function and sin r is a scalar function of r. यूजुअल नोटेशंस हम यूज़ करेंगे. यहाँ r क्या है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू स्केलर r, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सिंपली r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसको एक्स वाई और जेड के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके हम करली r बाई करली एक्स निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स बाई आर. इसी तरह से करली y बाई करली एक्स, curly r by curly y, that will be y by r, and curly r by curly z will be z by r. Now curl of this r sin r. r हमारे पास क्या फंक्शन था, x I cap, y j cap and z k cap. So r into sin r will be sin r x I cap plus sin r y j cap plus sin r z k cap. Now curl is del cross this vector function r sin r will be equal to I j k components of del, that is curl by curl x, curl by curl y and curl by curl z of this x sin r, y sin r and z sin r. इसको एक्सटेंड किया हमने. ith component will be curly by curly y of this, z as it is sin r का differentiation cos r and curly r by curly y minus इसी तरह से curly by curly z of this y cos r curly r by curly z. इसको पहले r के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, r को फर्दर z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया. इसी तरह से जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स आप निकाल लेंगे. करली आर बाई करली वाई इज वाई बाई आर, दिस इज जेड बाई आर. तो ये दोनों टर्म्स आपके पास आइडेंटिकल जीरो. इसी तरह से बाई सिमेट्री आपके पास ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो. नेक्स्ट हम देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर. डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर, डेल डॉट एफ क्रॉस आर. अभी अभी हमने निकाला था डेल डॉट एफ क्रॉस आर विल बी जी आर डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस आर. वी नो दैट कर्ल ऑफ आर विल बी जीरो, दैट मीन्स दिस विल बी आर डॉट कर्ल ऑफ एफ. कि चाहो तो आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो कि डेल क्रॉस आर विल बी इक्वल टू आई जे के कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड ऑफ एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. नेक्स्ट हम देखिए, इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज द यूजुअल पोजीशन वेक्टर, देन फाइंड द कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर into Rn, where R is the magnitude of R. ठीक है. इसको अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस फाई इंटू एफ. डेल क्रॉस एक तो स्केलर फंक्शन है Rn और एक वेक्टर फंक्शन है ए क्रॉस R, विल बी इक्वल टू क्या, डेल को पहले हम फाई के ऊपर अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल r raised to power n cross del phi cross f. f is a cross r. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लस, इस बार r raised to power n स्केलर फंक्शन एज इट इज डेल क्रॉस a क्रॉस r. क्लियर है.
कर्ल ऑफ फाई एफ। फाई एफ को हम किस तरह से ले रहे हैं, एज डेल फाई क्रॉस ए क्रॉस आर, दैट इज डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं, दैट इज डेल आर एन क्रॉस ए क्रॉस आर प्लस आर रेज टू पावर एन एज इट इज। अब देखिए डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या था, मिडल वेक्टर दैट इज ए इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू डेल डॉट आर minus other vector in the parenthesis that is r into del dot a plus z dot del. Z dot del is r dot del applied on this function a minus इस बार r dot a a dot del, r dot del applied on a minus a dot del applied on r। एक बार फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, सेकेंड टर्म को इवेलुएट करते हैं, r रेज टू पावर n डेल डॉट r। डेल डॉट r क्या होगा आपके पास, मीन्स डाइवर्जेंस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके फर्स्ट कंपोनेंट को x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड को y के विद रिस्पेक्ट, थर्ड को z के विद रिस्पेक्ट, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। डेल डॉट ए कांस्टेंट फंक्शन का डाइवर्जेंस विल बी 0। आर डॉट डेल क्या होगा, x करली बाई करली x प्लस y करली बाई करली y प्लस z करली बाई करली z। हमने r और डेल को स्केलरली मल्टीप्लाई किया है। डेल के कंपोनेंट्स क्या थे, कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई एंड कर्ल बाई कर्ल जेड। आर के कंपोनेंट्स एज एक्स वाई एंड जेड विल बी अप्लाइड ऑन दिस वेक्टर फंक्शन ए। सिंस ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड विल बी 0। तो ये टर्म आपके पास आर डॉट डेल अप्लाइड ऑन ए विल बी 0। del dot a is 0, divergence of a constant function, and r dot del applied on a is also 0। इसी तरह से a dot del, a को और del को हमने क्या किया, स्केलरली मल्टीप्लाई किया, दैट इज a1 करली बाई करली x प्लस a2 करली बाई करली y प्लस a3 इंटू करली बाई करली z अप्लाइड ऑन दिस फंक्शन r। r इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फर्स्ट टर्म में इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, सिर्फ आई कैप, तो क्या आएगा a1 आई कैप। इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट इज ओनली जे कैप, a2 जे कैप। इसी तरह से करली बाई करली z ऑफ दिस फंक्शन 0 0 एंड z का डिफरेंशिएशन z के विद रिस्पेक्ट 1 इंटू के कैप, तो a3 एज इट इज इंटू के कैप। सो दिस लास्ट टर्म इज vector A। So this is 2 times of vector A into r raised to power n। Lastly आपको सिर्फ divergence of r raised to power n निकालना है। Divergence of r raised to power n क्या था हमारे पास, n r n minus 1 करली फाई बाई करली x आई कैप, और r को हम फर्दर क्या करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इंटू आई कैप। तो इस टर्म को मैं लिखता हूँ प्लस एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 एज स्केलर बाहर, ठीक है। अंदर आपके पास करली आर बाई करली एक्स आई कैप, करली आर बाई करली वाई जे कैप प्लस करली आर बाई करली जेड के कैप, ठीक है। ये सिर्फ ये टर्म थी हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन क्रॉस प्रोडक्ट विद ए क्रॉस आर। So will be equal to 2 times of a r raised to power n। r by x will be x by r, curly r by curly y by r and z by r। इस r स्केलर को तो हमने बाहर रख लिया, डिवाइडेड बाई r, दैट इज r raised to power n माइनस 2। अंदर क्या बचा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये तो स्केलर आपके पास, सॉरी 2a r raised to power n प्लस अंदर क्या था n r रेज टू पावर n माइनस 2
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज दी वेक्टर आर क्रॉस ए क्रॉस आर। अब इसको आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह निकाल सकते हैं, दैट इज ए इंटू आर डॉट आर, और इसी तरह से आपके पास आर इंटू आर डॉट ए। सो दिस विल बी कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर रेज टू पावर एन। Next is F is W cross R. Then prove that W is equal to half of curl of F. Half of curl of F, where this W is the constant vector. So del cross F or curl of F will be del cross W cross R. उसी तरह से मिडल वेक्टर W इंटू del cross R minus other vector that is R into del cross W plus Z as R dot del applied on this W minus next क्या टर्म बची W dot del applied on this R। इन सारी टर्म्स को आप कैलकुलेट कर लेना। कर्ल ऑफ एफ आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर डब्ल्यू, जैसे लास्ट केस में हमारे पास क्या आया था 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक ही जगह उसने अब नोटेशन दे दी है डब्ल्यू। लास्ट सम आपको गिवन है कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर बाई आर क्यूब। उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस फाई एफ इज आर क्यूब इंटू ए क्रॉस आर, डेल applied on 1 by r cube cross a cross r plus 1 by r cube as it is, जो r raised to power n के लिए किया था बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट है 1 by r cube कर्ल ऑफ a cross r। Now this del 1 by r cube will be minus 3 by r raised to power 4 into x by r I cap, y by r j cap plus z by r k cap क्रॉस a क्रॉस r। सेकेंड टर्म को एक बार एज इट इज रखते हैं, दैट विल बी minus 3 by r raised to power 5 x I cap, y j cap and z k cap as the vector r cross a cross r। अब इसको एक बार ऐसे रखिए, सेकेंड टर्म 1 बाई आर क्यूब एज इट इज डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, उसी तरह से मिडल वेक्टर ए कर्ल ऑफ एफ क्या था ए इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू डेल डॉट आर minus other vector in the parenthesis that is r into del cross a plus r dot del applied on a minus a dot del applied on this r। a is a constant function, जब भी आप इसके ऊपर कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे दैट विल बी 0। वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ r इज 3, पहले निकाल चुके हैं हम। ये आपके पास क्या आ जाएगा minus 3 बाई r raised to power 5 into middle vector a into dot product of other two that is r square minus other vector in the parenthesis that is r into r dot a plus 1 by r cube into 3 times of vector a dot del applied on r will be a1 curly by curly x plus a2 curly by curly y
plus a3 curly by curly z applied on this vector function r, that is x I cap, y j cap and z k cap. इसको जब x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे i cap, a2 j cap and a3 k cap, तो ये हमारे पास वैसे क्या आ जाएगा, वेक्टर a, that is 2 times of vector a by r cube. Okay? तो माइनस ऑफ 3a by r क्यूब प्लस 2a by r क्यूब, तो यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा माइनस a by r क्यूब, और बाकी की टर्म्स को आप इकट्ठा कर दीजिए, दैट इज माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ r इंटू r डॉट a डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 5. ये आपके पास था कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए.